Okay, Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we learned about trigonometry and the basic ratios, trigonometric ratios. And today we are going to learn how to use those ratios, uh, which we have learned yesterday. We have learned yesterday uh, Pandit by Pandit, Hari Hari by, and we learned that first one ratio perpendicular by hypotenuse is known as sine, base by hypotenuse is known as cos, and perpendicular by base is known as tan. And reciprocal of these hypotenuse base, Pandit by Pandit, this one is known as cosec, this one is known as sec, and this one is known as cot. These 6 trigonometric ratios we learned yesterday. जो हमने कल सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रैशूज, तो वही आज हम यूज करने जा रहे हैं. हाउ टू यूज नाउ, बी attentive my dears. Example is here that if tan a is equal to 4 by 3, tan a is equal to 4 by 3, find other trigonometric ratios of the angle. तो बाकी यानी कि tan a हमारा किसके बराबर है 4 by 3. हमें जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रैशोज है जो हमने सीखा साइन कॉस टैन कोसेक सेक, वो हमें ढूंढने हैं, निकालने. वो कैसे ढूंढेंगे? तो व्हेन वी हैव वन ट्रिग्नोमेट्रिक रैशो इज गिवन एंड rest also we can find. How? Just see my dear, let this is our right triangle, right angled at B, and this one is A, this one is B. Clear my dear? You know that here is given tan A 4 by 3. यहाँ पे हमें दिया है क्या? tan A किसके बराबर है? 4 by 3 के बराबर है. अब हमें करना क्या है? कल जो हमने सीखा तो वो हम आज यूज करेंगे. तो tan A परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हरी हरी बाय. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? पहला वाला क्या है? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन. यानी कि पहला वाला जो है वो साइन है, दूसरा कॉस, तीसरा टैन. तो हमें टैन ए देके है, टैन ए. एंगल इज ए. सो यस्टरडे वी लर्न अपोजिट टू विच साइड इज अपोजिट टू एंगल ए, that is perpendicular, and this one is base and this one is hypotenuse. Clear? अब क्या करना है? Now we will write here tan A is equal to 4 by 3. We know tan is equal to perpendicular by base, so we can write here perpendicular by base is equal to, लेकिन हमारा यहाँ perpendicular क्या है? That is BC. BC divided by base जो हमारी है that is AB. That is AB. तो perpendicular by base किसके बराबर है? tan. tan के बदले हमने क्या लिखा? tan A के बदले perpendicular by base. तो perpendicular that is equal to BC and base that is equal to AB. तो अब हम क्या करेंगे? BC by AB is equal to 4 by 3. 4 by 3. Now, by this, what we can say? BC is equal to 4, AB is equal to 3. But already you know, this is already in simplest form. It means we can multiply here by K, upside also, downside also, where K is any positive integer. So, here we can write K. Here we can also write K. K cancel. Again, it will remain 4 by 3. Or if we will not write, no need. So, here what is? BC is equal to 4K and AB is equal to 3K. BC is equal to 4K, AB is equal to 3K. Now we know our in triangle BC, that is 4K, and this is what, my dear, AB, that is 3K. Now you have seen that hypotenuse is missing. First of all,
we need to find the hypotenuse AC. Already in class 9th as well as in class 8th we have learned about Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या है? That is longest side, square of longest side is equal to sum of square of other two sides. यानी कि जो AC स्क्वायर है हम क्या लिखेंगे यहाँ? नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जो लॉन्गेस्ट साइड हमारा हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर, वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. BC स्क्वायर. क्लियर माय डियर? तो अब AC तो हमें पता ही नहीं है, AC हमें ढूंढना है, हाइपोटेन्यूज हमें ढूंढना है. तो फिर क्या करेंगे? AC के बदले हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या ऐसे ही रखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB के बदले हम क्या लिखेंगे? 3K का होल स्क्वायर प्लस BC के बदले क्या लिखेंगे? 4K का होल स्क्वायर. तो हमने अब यहां पे क्या करेंगे? इज इक्वल टू 3 3s are 9 and K स्क्वायर प्लस 4 4s are 16 and here K स्क्वायर. क्लियर माय डियर? यहां तक आपको समझ में आया? तो AC स्क्वायर किसके बराबर निकला? 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर. सो 19 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज 25K स्क्वायर. क्लियर माय डियर? तो अब हम इस स्क्वायर को कैसे कैंसिल करेंगे? व्हेन वी टेक रूट ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो AC स्क्वायर यहां पे भी रूट इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, तो इसको भी रूट. क्लियर माय डियर? यहां से स्क्वायर और रूट कैंसल, यहां से भी स्क्वायर और रूट कैंसल. क्लियर? तो AC स्क्वायर हमें किसके बराबर निकला? 25. यहां पे नहीं होगा अभी. तो 25 किसका स्क्वायर है? वो 5 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 5. K का ऑलरेडी स्क्वायर है, उसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा 5K के बराबर. तो अब हमें क्या है? नाउ वी नो ऑल साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल ABC. यानी AB अब हमारे किसके बराबर है? 3K के बराबर. BC किसके बराबर है? 4K के बराबर. AC किसके बराबर है? 5K के बराबर. अब हम क्या ढूंढेंगे? अब हम ढूंढेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नाउ वी नो AC हमारा किसके बराबर है? दैट इज 5K. क्लियर? वो हमने भी निकाला है बाय पाइथागोरस थ्योरम. उसके बाद तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि AB वो किसके बराबर है? 3K के बराबर. और BC वो किसके बराबर है? दैट इज 4K. अब हमें ढूंढना क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A. देखो, सबसे पहला वाला रेशियो जो है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. कल ही हमने सीखा है. परपेंडिकुलर हमारा क्या है? दैट इज BC. ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? दैट इज AC. ये किसके बराबर है? हमें साइन A. साइन A. और वी कैन राइट साइन A is equal to BC by AC is equal to, we know BC किसके बराबर है? 4K divided by AC किसके बराबर है? 5K. K और K कैंसल, तो साइन A जो पहला रेशो है दैट इज इक्वल टू 4/5. दैट इज इक्वल टू 4/5. अब इसके बाद ढूंढेंगे दूसरा वाला रेशो दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो वो कौन सा रेशो है? पहला वाला है साइन, दूसरा वाला कॉस. तो हम क्या लिखेंगे? कॉस A इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज बेस हियर? AB. हाइपोटेन्यूज AC. दैट इज इक्वल टू, वी नो AB दैट इज इक्वल टू 3K divided by AC, we know that is 5K.
k and k cancel, that is equal to 3 by 5. Means cos A is equal to 3 by 5. Now tan. Tan is already given in the question. No need to find tan A. Now what we have to find? Rest 5. We are going to write inverse of this. Hypotenuse, hypotenuse base, perpendicular base, perpendicular. तो पहले 3 ratios हमने निकाले. Now fourth one, hypotenuse by perpendicular, that is equal to cosec. यानी cosec A किसके बराबर है? hypotenuse. hypotenuse हमारा क्या है? वो है AC divided by perpendicular, वो है क्या? that is BC. क्लियर? तो उसके बाद सेकंड जो है वो क्या है? AC के बदले हम लिखेंगे 5K, तो BC के बदले लिखेंगे 4K. K और K कैंसल, दैट इज इक्वल टू 5 by 4. ऑलरेडी हमने कल सीखा जो साइन है, जो कोसेक है, वो इसका क्या है? रेसिप्रोकल है. साइन किसके बराबर निकला? 4 by 5. कोसेक किसके बराबर निकला? 5 by 4. अब इसके बाद क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, दैट इज सेक. सेक ए. सेक ए किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस. हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज ए सी. ए सी डिवाइडेड बाय बेस. बेस इज व्हाट? ए बी डिवाइडेड बाय ए बी. नाउ ए सी के बदले हम क्या लिखेंगे? दैट इज 5K डिवाइडेड बाय बेस. बेस के बदले क्या लिखेंगे? 3K. K और K कैंसल, दैट इज इक्वल टू 5 by 3. यानी सेक ए हमें किसके बराबर निकला? 5 by 3 के बराबर. जो इसका हमने निकाला, दैट इज 3 by 5. इसका रेसिप्रोकल है सेक, वो किसके बराबर निकला? 5 by 3. नाउ द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, वो किसके बराबर है? कॉट ए. कॉट ए. कॉट किसके बराबर होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर. बेस क्या है हमारी? ए बी बाय परपेंडिकुलर क्या है? बी सी इज इक्वल टू, ए बी के बदले क्या लिखेंगे हम? 3K डिवाइडेड बाय बी सी के बदले क्या लिखेंगे हम? 4K. K और K कैंसल, दैट इज इक्वल टू 3 by 4. और कल जो हमने सीखा, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है? tan ए का रेसिप्रोकल है. tan ए किसके बराबर है? 4 by 3. तो इसका रेसिप्रोकल 3 by 4, वो किसके बराबर निकला? कॉट ए के बराबर. क्लियर? अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अल्लाह हाफिज. टुमारो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर.